Similarly, we have one more complex number, say 5 plus 7i. So this is also complex number. And now we want to perform addition of these two. So the resulting number will be क्या होगा? 7 plus 10 है. 7 plus 10 है. 7 plus 10. That means answer will be in the same format, real and imaginary, wherein real part will be 7 plus 10i. So now we have to perform arithmetic operation on such complex numbers. So this is number 1 and this is complex number 2 and this is resultant or addition of complex numbers. So now I want to do this with the help of class. तो क्लास कैसे डिजाइन करेंगे हम? Yes. सर एक इंटीजर असेल रियल पार्ट आणि एक दुसरा इंटीजर इमॅजिनरी पार्ट. ठीक है. So our class consists of two attributes. The class complex and the first part is or the first attribute is real and second attribute is imaginary. Now while performing addition, now both these two will be integer or float. Can it be like this 2.5 and 3.5? Yes sir, float. It can be float. Yes sir, it can be float. ठीक है. So real and imaginary, these two attributes will be of data type float, है ना? उसके बाद हम क्या करेंगे? The real part while performing addition, say this is object 1 and this is object 2. So object 1's real part that we have to add with the real part of object 2 and the addition we want to store in object 3's real part. Do you agree? Yes sir. Yes sir. तो यहाँ पे आएगा object 3 और answer और addition. So the object 3 dot real is equals to object 1 dot real, object 2 dot real. इन दोनों का एडिशन इसमें होगा और इन दोनों का एडिशन इसमें होगा. Similarly, if I want to perform subtraction, again this minus this here, this minus this will be here, and at the same time you have to consider sign changes. Can you write program for this? Just addition only. Yes sir. First of all, Yes, you sir. write one except. Except कैसे होगा? In except you will accept real part and you will accept imaginary part. Do you remember that? कौन सा होता है वो? ठीक है, चलो इतना तो करो, बाद में देखते हैं. The problem statement is we have to define a class complex which consists of two attributes. One is real, second one is imaginary. And then we have to write different functions. Functions to accept complex numbers, function to display complex numbers, and a function to perform addition of complex numbers. Can you do that? Yes sir. How many of you can do that? Say yes in chat box.
Around 30 students. What about remaining? Okay, how many of you are not able to perform this? सर हमें थोड़ा सा confusion है, doubt है. Say no or just type. मेरे भाई ये क्या होता है? हाँ भी नहीं और ना भी नहीं. Okay, is there anyone who can share his or her screen and keep on typing so that those who Yes, are sir. not able to write this program, at least they can see and understand. Yes, sir. सर करू शून्य. Hmm. किसी को मिला क्या नायका का आईपीओ? सिगाची नायका. नो सर, लक नहीं उतना. I got policy buzzer. ओ भाई 17% सर्ज मारा है उसने आज. And yesterday 22. तो होगा कुछ अच्छा. कल LIC का गिरेगा, लेने होगा वाले हो गिरेगा. सर? LIC का लेने वाले हो? अभी फेब में आएगा ना. देखते हैं ना उसका कितना निकलेगा साइज. चलो आज अगर ये जल्दी से असाइनमेंट हो जाता है तो वी कैन यूटिलाइज दैट टाइम.
First of all, write accept function. And instead of parameterize constructor, you make it default constructor and assign directly 0, 0. Okay, sir. Okay, sir. Below that, immediately write accept function. Enter real part. Write display function. सिंपल डिस्प्ले कर सध्या रियल प्लस इमॅजिनरी आय. सो निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह असेल ना तर म्हणून. हा नाही ठीक आहे ना, आपण ते नंतर हळूहळू एक 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 एनहान्समेंट करूयात ना, करेक्शन्स करूयात आपण त्याच्यात. लेट इट बी रॉंग. तेच तर लर्निंग आहे.
डबल कोट्स मध्ये आय. Perfect. Later on we will change it. ओके सर, ओके. First of all, try to accept and display. Okay, all of you. What you have to do, you have to go always, you have to go step by step. For example, in this program, we have just written accept and display function. Let's try to do those things properly. Hey, object कौन declare करणार? Hey, hero. हाँ. Declare complex C1. C1 dot accept C1. Perfect. Very nice. So first of all, we will execute this much part only, and we will check whether whatever we are entering, execute kar. Whatever we are entering, whether it is giving us result properly or not. So that if any mistake, any error is there, that we can rectify, that we can solve here itself. अब अगर मैंने कहा एक बॉक्स में ही आपको कुछ ढूंढना है तो वो आसान होता है. मैंने अगर कहा एक रूम में ढूंढना है तो वो डिफिकल्ट होता है. 2 plus 3 है. Again, execute once again. This time, first value negative, second value positive. Correct. Now, first value positive, second value negative. Here we go. We are getting something different. 2 plus minus 7i. So what user will understand? Okay, thumb. Execute once again and both values negative. So minus 4 plus minus 6i. So here, what it means? Anup, are you there? Yes, sir. बरं, याच्यात काय करता येईल? How can we solve this problem? It is showing two different signs in case of negative value. If imaginary part is negative, काय करायचं? Sir, can you please repeat? Have you seen the execution part here? If you see, त्याला दाखव रे. हाँ. He has entered real part as 2 and imaginary part as minus 7. So in that case, it should display, काय display करायला पाहिजे त्यांनी? 2 minus 7i. बरोबर, 2 minus 7i. पण तो काय डिस्प्ले करतोय तिथे? 2 plus minus 7i. So does it make any sense? 2 plus minus 7i. No. मग तिथे काय यायला पाहिजे? 2 minus 7. Minus 7i. मग आता काय चेंजेस करावे लागतील प्रोग्राम मध्ये? गो टू प्रोग्राम. काय होतंय अनुप, तुला कळलं का त्याच्यात? Yes, sir. काय कळलं, काय होतंय सांग मला. काय प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय झाला? व्हॉट प्रॉब्लेम यू हैव आइडेंटिफाइड? सर वो प्लस साइन वैनिश करना पड़ेगा. कब? सही बोल रहे हो आप, लेकिन कब? जब माइनस साइन आएगी. किसका माइनस साइन? आपका, मेरा? इमेजिनरी. इमेजिनरी का. ठीक है, यानी अगर इमेजिनरी निगेटिव है तो इंस्टेड ऑफ प्लस व्हाट इट शुड डिस्प्ले? माइनस. शुड डिस्प्ले माइनस. ठीक है. सो वरतीच घे डिस्प्ले, एंटर मार त्याच्यानंतर फर्स्ट स्टेटमेंट. हा, त्याच्या अगोदर त्याच्यावरती. इफ imaginary part is greater than 0, then
यू विल प्रिंट लाईक दिस. जे खाली आहे ते. अरे कट पेस्ट कर ना. हो करू शकतो, काहीच प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे. एल्स if imaginary is else if imaginary is less than 0, then instead of plus it will be minus. Paste. सर मग टाकायची गरजच नाही ना, मायनस टाकायची गरज नाही ना, कारण की ते येतानाच सर मायनस. Yes. So if real part is positive, it will show 2, and if imaginary is -3, then it will directly display 2 minus 3i. And if imaginary part is 0, then there is no need to display 2 plus 0i. We can directly display only 2. ठीक है कर रहा हूँ. Okay, 5 minus 7. Fine. Now let's go for addition. सर माझं झालं ऍडिशनचं वगैरे डिस्प्ले वगैरे करून. हो. येस. कर, तू शेअर कर. पुणेश, लेट हिम शेअर. सर मी ते इफेल्स वगैरे ते प्लस मायनस साठी नाही केलं, मी थोडं वेगळे मेथड केलं. तुम्ही एकदा बघा तरी. ओके, नो इश्यूज. Sir, is it visible? Yes. Sir. Okay. Now, if you see here, जब हम क्लास के एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो एट्रीब्यूट डिफाइन करते वक्त सपोज इफ आई वांट टू एक्सेप्ट 2 स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन and I want to accept basic information, say name and roll number, and what I want to accept. Hello. बाकीचा इन्फॉर्मेशन है ना, एज वगैरे. नहीं. I want to accept roll number and age, right? Okay. Now, if I say I want to accept information of 2 students, in that case, will you put attributes as roll number 1, age 1, roll number 2, age 2? No. So, in that case, what you will do, you will create 2 different objects, right? Okay. Here also. हा ओके. So here, म्हणजे हे 2 वेळा, म्हणजे हा वाला पार्ट एक वेळा करून फक्त 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करून कॉल करायचं ना. yes, repetitions हो रहा है ना वहाँ पे. समजा. काय होतंय, एंटर रिअल पार्ट, कॉम्प्लेक्स पार्ट, हे सगळं दोनदा होतंय. हो. ते अवॉइड करण्यासाठीच आपण सगळे यूज करतोय C++, डुप्लिकेशन अवॉइड करण्यासाठी. ओके सर. येस सर. And the addition of 2 complex number will be a complex number. So for that also we will use one more object instead of writing that sum, difference. हा रन करून दाखव. नाही नको, चेंज करते. म्हणजे मला सम आणि डिफरन्स साठी नाही कळलं, काय म्हटले तुम्ही? सम आणि डिफरन्स साठी पण तू काय घेतलंय, सम रिअल, सम इमॅजिनरी. बरोबर ना? Difference real, difference imaginary. That means instead of creating 4 different objects, you have declared 8 attributes. हे सगळं 2च attribute आहेत, रिअल आणि इमॅजिनरी. त्याचे तुला 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचे होते. इन्स्टेड ऑफ दॅट यू हॅव टेकन एव्हरीथिंग एज अ ॲट्रिब्यूट. पण मग सम तर आपल्याला एकत्र डिस्प्ले करायचं ना, रिअल आणि इमॅजिनरी. मग त्याचा एक कॉम्प्लेक्स नंबर घ्यायचा ना, जसं मी केलं होतं. थांब जरा. ओके. कोण आहे हा? पूर्णेश, तुझा कोड जरा हे कर बघू, मेल कर मला.
ओके सर. सर मेल आयडी द्या ना. बाकी के लोग है क्या? जैस्मिन, Yes, sir. are you there? Yes, sir. Okay, what you are doing? Are you Sir, I'm learning or you are writing a code? Sir, I'm trying. Okay, on mobile or on laptop or on a Lap- book? Okay, can you share your screen? Yes, sir. Sir, screen is visible. Yes. Good. Okay. ठीक. एग्जीक्यूट करके देखा? हाँ सर, वो किया था पर वो if else नहीं ऐड किया. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लो आप. लेकिन आपको समझ में आ रहा है ना क्या गलत हो रहा है? हाँ सर. हाँ ठीक है. सर सेंड केलाय सर. Okay, those who are not able to write program, they can see here. सर झालाय माझा 2 मिनिटं दाखवू का सर? नाही ठीक आहे. सगळ्यांना थोडं स्टेप बाय स्टेप आपण दाखवूया. So you all got how to write accept and display. Now we are going to write addition part. ठीक है. So addition part, what we need? One object with one complex number, real and imaginary part. Another complex number object with real and imaginary part. And one more object to store addition of real and imaginary part. So this will be the answer. This will be the sum. Some real, some difference. So here, right now, if I write c1.accept, this will be our c1. This will be our c2. And this will be our addition of say c3. Now, first of all, I have to accept. If I write complex c1, memory will be allocated for real and imaginary. When I write c1.accept, values will be accepted in real and imaginary part of c1. Real and imaginary part of c1. Why? Because c1 is calling that function. Similarly, I'll declare one more object c2. So memory will be allocated for private variables or member variables, so real and imaginary. Now I have to accept those values also. So c2 dot accept, दोनों values accept हो गई. उसके बाद हमें क्या करना है? एडिशन परफॉर्म करना है. ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे? यूजर ने जो एंटर किया है वो उसे हम फिर से दिखाते हैं एक बार, in order to make sure जो भी उसने एंटर किया है वो सही किया है या नहीं. तो उसके लिए हम यहाँ पे c1.accept and c1.
C2 डॉट एक्सेप्ट के बाद C1 डॉट डिस्प्ले C2 डॉट डिस्प्ले। चाहिए तो हम यहाँ पे एक मैसेज लिखते हैं, Cout you have entered following values and those values we will display. After that we want to perform addition of this plus this into this, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इसकी C1 और C2 की एडिशन करनी है। So now we have different functions. Okay, all of you, stop doing whatever you are doing and just pay attention over here. All of you, are you with me? Say yes, no. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Good. So now we have to perform addition of these two objects and I want to store answer in third object, or forget about this part. I want to perform addition of टू ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट की एडिशन कैसे होगी, तो एक मुझे इसे भी एक्सेस करना है और इसे भी एक्सेस करना है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे व्हेन आई से C1 डॉट एड, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, आई एम राइटिंग वन मोर फंक्शन, void add। अब जब मैं यहां पे लिखूंगा C1 डॉट एड, ठीक है, एंड इफ आई यूज हियर रियल एंड इमेजिनरी, सो रियल और इमेजिनरी किसे रिप्रेजेंट करेंगे, C1. C1. C1 because add function is called by C1. So अगर आप सिर्फ रियल और इमेजिनरी लिखते हो तो वो किसके होंगे, C1 के होंगे। सपोज अगर मैंने यहाँ पे लिखा C2 डॉट एड, तो क्या होगा, रियल और इमेजिनरी किसे पॉइंट करेंगे, C2 को। इट विल रिप्रेजेंट C2। दैट मीन्स इफ आई राइट Cout रियल तो वो 5 डिस्प्ले करेगा, इफ आई राइट Cout इमेजिनरी इट विल डिस्प्ले 7, राइट। Say yes, no. Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Now that means when I write C1 dot add, I got real and imaginary of C1. So 2 and 3. Now I want 5 and 7. So how do I get that here? इस add में कैसे लाना है, तो यहां से पास करो आप C2 को। अब C2 क्या है, पूर्णेश शांत बस जरा, बाकी चलना चान्स दो, चला। अदर्स, व्हाट इज C2? Object of complex. Very nice. Object of class complex. Suppose अगर मैं यहाँ पे ऐसे होता, इंटीजर i, यहाँ पे मैंने लिखा i, तो आप ऐड फंक्शन को क्या पास कर रहे हो, integer I. So here, how will you accept? You have to take one integer variable, the temporary variable, integer temp. Similarly, here we are passing C2. C2 का डेटा टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स। पहले I का डेटा टाइप था इंटीजर, इसलिए यहाँ पे इंटीजर लिया। अभी C2 का डेटा टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स, तो इंस्टेड ऑफ इंटीजर विल राइट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब C2 की वैल्यू किस में कॉपी हो जाएगी, ठीक है। आपको अगर पता है तो यू कैन कंटिन्यू विद दिस प्रोग्राम। चलो कंप्लीट करो एंड वंस यू आर डन शेयर योर प्रोग्राम।
यस, किसी का कंप्लीट हुआ है का प्रोग्राम पूर्णेश? सर 2 मिनिटं सर, ते हो, मी yes, पब्लिक yes, व्हेरिएबल्स घेतले yes. ते. प्रथमेश, मुग्धा, येस सर, झालं माझं. दाखवू? हो हो. ओके. Yes sir, is this visible? Yes. Okay. So this is the code. Very nice. एकदा कोड दाखव एकदा. Okay. Main function. Go to main function first. Okay. Very nice. Very nice. Even not accept. Okay. Very nice. हाँ. C4 नंतर डिफॉल्ट केस टाकायची. हाँ, ओके. ठीक आहे. आता नंतर करतो. हाँ. वरती स्क्रोल कर. अच्छा, स्क्रोल. क्लास डेफिनेशन. ठीक है. Yes. सॉरी. ओके. ठीक है. चल एग्जीक्यूट. ओके. एक मिनट ना. 4 + 5 1 + 2, so 5 + 7. Yes. Subtraction. 3 + 3 आहे. ओके. ठीक. And multiplication. ओके. बर. आता फक्त याच्यात एकच ड्रॉबॅक आहे की ते इफ इट इज निगेटिव्ह. Okay. ठीक आहे. सेकंड व्हॅल्यू से 5 - 3 आहे. 5 - 2 आहे. Okay. Execute it once again. Okay. Accept values. का एक्झिक्यूट का तू स्टॉप करून परत रन करतेस? यू कॅन डायरेक्टली प्रेस 1 ना. हाँ, yes sir. Okay. So 1. 5 माइनस. हाँ ठीक है. 5 माइनस Minus. 2 बस. Okay. And 4 - 2. Okay. So plus 9 minus 4. 9 प्लस -4 आहे दिसते. हाँ. इट शुड डिस्प्ले ओनली Minus. -4 आहे. Okay. तर तेवढा चेंज तुला तिथे करायचा आहे. Oh, yes sir. कर बघू सबट्रॅक्शन. मल्टीप्लाय. Plus minus येते परत. ठीक आहे. व्हेरी नाईस. Yes sir. कशाला stop? हो. आणि मला मेल कर तुझा कोड. मी त्याच्यात अजून एक छोटस हे सांगतो चेंज. Okay. Yes sir. ऑपरेटर ओवरलोडिंग हुआ है क्लास में? No sir. ओके. ठीक.
येस सर मेल केलं. ओके. So this addition can be written in n different ways. For example, here what she did is, for time being, for simplicity, I'll remove this much part. Sir, your screen is not visible. सर Is it visible now? होती सर, होती पहिले पण होती. Yes, sir. Ritik. Okay. So this is to accept first value, first complex number. This is for accepting second. This is for calculating sum and displaying sum. Calculating subtraction, displaying subtraction. Now here, what she is doing? She is accepting values in C3. That means if you write real and imaginary only, it will be of C3s. And you are passing C1 and C2. So C1, it will be copied into this C1. Please understand that whenever you are writing like this, this is your main function. Okay. So in main function, you have created two objects, C1 okay. So we have C1, C2, C3. So this C1, C2 and C3, this also, it will be in main function. So they have different memory allocations. When you are passing these two C1 and C2 to this function, say sum, at that time, for this sum function, separate C1 and C2. Sum is creating two different objects, C1 and C2. Therefore, separate copy of C1 is and C2 is created for this. So that means if I make any changes in some function, जो C1 ऑब्जेक्ट है उसमें अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ रियल और इमेजिनरी, तो वो मेन फंक्शन का C1 चेंज नहीं करेगा, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनती है. तो यहाँ से उसने C1 एंड C2 भेजा है, तो वो C1 एंड C2 ये है. यहाँ से ये कहाँ पे जा रहा है? हियर. Complex C1, complex C2 of function sum. So whenever we are starting this sum function, वहाँ पे फिर से एक मेमोरी एलोकेशन होता है C1 और C2 के लिए, और ये जो वैल्यूज है वो इसमें कॉपी हो जाती है. Now we can write this statement in this way also. What I can do is C1 dot sum. सर असं केलं तर सर कॉम्प्लेक्सचा फंक्शन क्रिएट केला, म्हणजे कॉम्प्लेक्स रिटर्न करणारा फंक्शन, आणि तसंही चालेल. बघूयात आपण ते पण. हा सर हम्म?
सर म्हणजे मी तसंच केलंय. So for this, we can write a function like this. Now we can perform addition in one more way. कैसे? ऐसे C1 dot sum. अब इस केस में क्या होगा? C1 dot sum. सम फंक्शन हम लिख रहे हैं, इसमें हम एक ही ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं. ये फंक्शन सम कौन कॉल कर रहा है? C1 कॉल कर रहा है. यानी अगर मैंने सिर्फ रियल और इमेजिनरी लिखा तो वो किसका होगा? यस, C1 का रहेगा. ठीक है, तो ये C1 का है, ये भी C1 का है. C1 का रियल और C2 हम पास कर रहे हैं. वी आर पासिंग दिस ऑब्जेक्ट इन दिस से टेम्प. तो C2 का रियल मुझे कहां से मिलेगा? इफ आई राइट टेम्प डॉट रियल. C2 का इमेजिनरी कैसे मिलेगा? बिकॉज C2 इज कॉपीड इनटू टेम्प. इफ आई राइट टेम्प डॉट इमेजिनरी, वो C2 का रहेगा. सो ये C1 का इमेजिनरी, ये C2 का इमेजिनरी, दोनों का एडिशन होके वो फिर से किस में स्टोर हो रहा है? C1 में. C1 में, because I'm writing just real and imaginary, and whenever you write just real and imaginary, it represents calling object. तो इसके बाद अगर मुझे आंसर डिस्प्ले करना है तो what should I write? C1 dot display. C1 dot display, right? In this case, we will write C1 dot display because answer is in C1. Similarly, और किस तरीके से हम कॉल कर सकते हैं ये? Yes, सर C2 dot sum और Yes. C1 is equal and C2 dot display. dot sum, और इस बार कौन सा ऑब्जेक्ट पास करेंगे हम? C1. C1. तो फिर यहाँ पे आंसर किस में आएगा? C2 में. अंडरस्टैंड? यहाँ पे क्या हो रहा है? C1 डॉट सम. तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ये फंक्शन कॉल कर रहा है ये ऑब्जेक्ट. C2 पास हो रहा है, ठीक है, और आंसर फिर से C1 में ही जा रहा है. यानी मेरे ओरिजिनल वैल्यूज, आई एम लूजिंग दोज वैल्यूज. सपोज, आर यू गेटिंग मी और नॉट? Yes, sir. Yes sir. ठीक है, तो C1 में क्या हो रहा है? C1 डॉट सम. तो जब आप C1 फंक्शन, सॉरी सम फंक्शन कॉल कर रहे हो तो इस बार आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट है टेम्प नाम का. आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट है टेम्प. अब क्या कर रहे हो? C1 डॉट सम C2. तो C2 की वैल्यूज इसमें आ जाएगी टेम्प में. एडिशन तो परफॉर्म होगी और एडिशन स्टोर कहां पे होगी? यहां पे. तो 5 + 2 7, 7 + 3 10. तो इसकी जो ओरिजिनल वैल्यूज है वो लॉस्ट हो गई. तो अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना है तो अब पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वन साइड इज एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो वैनिश हो गया है, ओवर रिटर्न हो गया है. सिमिलरली हम ऐसे भी लिख सकते हैं. सर मला दाखवू का मी? झालाय. हाँ, कोड दाखवू सर. इसमें किसी को कोई डाउट है हम कैसे कॉल कर रहे हैं? अब हम ऐसे ही क्यों करेंगे? बिकॉज वी वांट C1 एंड C2 इंटैक्ट सो दैट वी कैन परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस, सम मोर ऑपरेशंस. इसीलिए हम ऐसे करें. अदरवाइज दो ऑब्जेक्ट में भी काम हो सकता है. ठीक है, सांगा बाळा, काय सांगायचं तुझं बघू. Yes.
ये पण करते हैं। तो इसने क्या किया है, अब जो हमने फंक्शन कॉल किया था, ठीक है, मीच शेअर करू का? बरोबर आहे तुझं. सर याच्याने लॉस पण होत नाही. अब इसमें क्या हो सकता है, C3 जो है, ठीक है, यहाँ पे हम C3 दे रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए C3 में, इसीलिए ऐसे. या फिर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट कॉम्प्लेक्स, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं टेम्पररी, ठीक है, C1 रियल C2 रियल इस टेम्प के रियल में स्टोर करते हैं. सर नाही सर ते C1 घ्यायची गरज नाही पडणार ना सर. जरी आपण एक तो ऑब्जेक्ट घेऊ शकतो ना तिथून. ठीक है, एकच नाही. ठीक है, तो टेम्प है, टेम्प के रियल में मैंने क्या किया, C1 एंड C2 का रियल का एडिशन स्टोर किया. C1 और C2 का जो इमेजिनरी है उसका आंसर टेम्प के इमेजिनरी में स्टोर किया. और अब मैं क्या करता हूँ, ये टेम्प जो है ऑब्जेक्ट वही डायरेक्टली रिटर्न करता हूँ. ठीक है, अब मैं रिटर्न कर रहा हूँ टेम्प. क्या रिटर्न कर रहा हूँ, टेम्प. टेम्प यानी क्या है, आंसर करा रे पटापट. Object of which class? Complex. So instead of void, we will write complex because it is returning object of that type. So now it is returning a value. So here we cannot write like this. We can write like this. ठीक है, but this sum is member function of class. ये जो sum है वो member function है क्लास का, तो उससे किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करना जरूरी है. तो इसीलिए मैं यहां पे लिखूंगा C1 डॉट सम. ठीक है, चलेगा क्या? विल इट वर्क? See, C1 and C2 they are passed in this C1 and C2. For simplicity, I'll change the names. C1 और C2 की वैल्यूज कहाँ पे कॉपी हो रही है? यहाँ पे. यहाँ पे मैंने ओनली रियल या फिर ओनली इमेजिनरी कहीं पे लिखा है क्या? नहीं लिखा है. So it doesn't matter whether you are calling this function with the help of C1 or C2 or C3. आप किसी से भी कॉल करो चलेगा, because you are passing these two objects जिनका एडिशन हमें करना है वो आप एक्सप्लिसिटली पास कर रहे हो. लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं करना है, मेमोरी सेव करनी है, तो आप एक काम करो, एक यहां से निकाल दो. ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ रियल लिखो T1 की जगह पे. तो ये फंक्शन हमें किसके साथ कॉल करना पड़ेगा? T1 के साथ, और सिर्फ C2 पास करो जैसे हमने नीचे किया था यहाँ पे. अब C1 की वैल्यूज इम्प्लिसिटली इसमें जाएगी एंड इन दिस वेरिएबल. C2 की वैल्यू एक्सप्लिसिटली फ्रॉम T2 वाया T2 इट विल बी हियर एंड हियर. और उनका एडिशन टेम्प में है, हम वो टेम्प रिटर्न कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ दिस इट विल बी टेम्प. तो टेम्प किस में जाएगा? C3. समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. Okay, if you want, you can note it down. और ये प्रोग्राम आप इसी तरीके से कंप्लीट करो, लाइक दिस. यू हैव टू राइट फंक्शंस लाइक दिस. Everything plus, minus, multiplication, division. सर अगर हम ऑपरेटर वोलेटिंग से ट्राई करें चल सकता है सर? वही करने वाले हैं प्लस का डिफरेंस. यस यस. ओके सर.
वही करने वाले, डोंट वरी। So in this way, we will write a definition to perform addition, and in this way we can call it. क्या हो रहा है गौरव? सर वो डिस्प्ले फंक्शन में सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर ही शो हो रहा है, जो एडिशन के बाद वाला रिजल्ट है वो नहीं शो हो रहा। अच्छा, सर माझं होतंय सर, म्हणजे नाही, C3 ठीक आहे, सर C3 मध्ये स्टोअर केलं ना सर, C3 डॉट डिस्प्ले केलं नाही ना. नाही, ठीक आहे ठीक आहे, त्यांनी वेगळा केलाय कोड. काय याचं नाव? गौरव, हाँ सर। आपने जो किया है ना, उसमें छोटी सी दिक्कत है, वो ये है कि आपने एक्सेप्ट करते वक्त क्या किया है, अभी यहाँ पे एरे लिया है, ठीक है? यस सर। तो एरे का इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? एरे का नंबरिंग 0 से। 0 से, ठीक है ना? हाँ तो यस एडिशन सर, करते समझ गया। वक्त, हाँ, तो एडिशन करते वक्त आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एडिशन कर रहे हो 1 और 2 की, तो इंस्टेड ऑफ दैट 0 एंड 1 करना पड़ेगा. यस सर, थैंक यू सर। ठीक. और किसका कोई डाउट है? Okay, so I'll create one assignment, complex number. You just upload this assignment over there. Okay, sir. Okay, good to go. सर See मेन्यू you. ड्रिव्हन करायचं आहे का? हाँ मेन्यू ड्रिव्हन करायचं आहे? हाँ, मेनू ड्रिव्हन करा, थोडंसं आणखीन चांगलं राहील. आत्तापासूनच प्रॅक्टिस करत राहा. ठीक है, if no doubt you may leave.